Hello children, hope you're all doing good. Let's start today's chapter, coal and petroleum. Warm-up exercise. An earthworm burrowing in moist soil eats decaying plant material. A robin catches the worm and flies to a tree. The leaves of the tree use sunlight during photosynthesis. Leaves fall to the ground, decay, and perhaps become an earthworm's meal. What do these living things have in common? They rely on Earth's natural resources, the parts of the environment that are useful or necessary for the survival of living organism. देखिए एक अर्थवॉर्म जो है वो मॉइस्ट सॉइल में बोरो करता है एंड डेड प्लांट डिकिंग प्लांट मटेरियल को खाता है. रॉबिन जो है वर्म को कैच करता है एंड देन इट फ्लाइज टू अ ट्री. अब जो लीव्स हैं ट्रीज के वो सनलाइट को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करते हैं. देन लीव्स ग्राउंड पे गिरते हैं, डीके होते हैं और शायद वो अर्थवॉर्म का खाना बन जाता है. तो इन सभी लिविंग थिंग्स में क्या कॉमन है कि ये अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज पे रिलाई करते हैं. Natural resource. What kinds of natural resources do you use? Like other organisms, you need food, air and water. You also use resources that are needed to make everything from clothes to cars. Natural resources supply energy for automobiles and power plants. Although some natural resources are plentiful, others are not. हम किस तरह के natural resource को use करते हैं? जैसे कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह हमें फूड, एयर एंड वाटर की ज़रूरत होती है ना. और हम क्या करते हैं, इन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं जिससे कि हमें क्लोथिंग से लेके कार तक हमें सब इन्हीं रिसोर्सेज से मिलता है. तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एनर्जी सप्लाई करते हैं ऑटोमोबाइल्स के लिए, पावर प्लांट्स के लिए. हालांकि ये कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो प्लेंटीफुल नहीं हैं, जबकि कुछ हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज. द सन, एन इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, प्रोवाइड्स a constant supply of heat and light. Rain fills lakes and streams with water. When plants carry out photosynthesis, they add oxygen to the air. Sunlight, water, air and the crops shown in figure are examples of renewable resources. A renewable resource is any natural resource that is recycled or replaced constantly by nature. अच्छा, renewable resources आपके वो होते हैं, वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है, जिनको रिप्लेस किया जाता है कॉन्स्टेंटली बाय नेचर. जैसे अगर हम सन की बात करें तो ये आपका इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है. ये कॉन्स्टेंट सप्लाई प्रोवाइड करता है हीट एंड लाइट की. Cotton and wood are renewable resources. Cotton cloth is used for rugs, curtains and clothing. A new crop of cotton can be grown every year. Wood is used for furniture, building materials and paper. It will take 20 years for these young trees to grow large enough to harvest. अब जैसे कॉटन एंड वुड है आपके, ये भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. आपको हमेशा हर साल हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें कॉटन से कपड़े बनाने हैं तो कॉटन की क्रॉप को ग्रो करना पड़ेगा. वुड से हम फर्नीचर बनाते हैं तो कम से कम आपका 20 ईयर्स लगता है, जिसमें यंग ट्री जो है एक वो बड़े से ट्री में आपका जब ग्रो करता है. Non-renewable resources. Natural resources that are used up more quickly than they can be replaced by natural processes are non-renewable resources. Coal, minerals and petroleum are the examples of non-renewable resources. Earth's supply of non-renewable resources is limited. You use non-renewable resources when you take home groceries in a plastic bag, paint a wall or travel by car. Plastics, paints and gasoline are made from an important non-renewable resource called petroleum or oil. Petroleum is formed mostly from the remains of microscopic marine organisms buried in Earth's crust, which are called fossil fuels. It is non-renewable because it takes hundreds of billions of years for it to form. अच्छा देखिए, जिन रिसोर्सेज को, जिन नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्विकली हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं या विद अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, वो आपके होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. जैसे अगर हम कोल एंड मिनरल्स या पेट्रोलियम की बात करें, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना. तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, राइट. अब जैसे आप ये देखिए कि क्योंकि इनको बनने में, जैसे आपका पेट्रोलियम है, ये आपका बनता है मरीन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपके माइक्रोस्कोपिक मरीन ऑर्गेनिज्म जो अर्थ क्रस्ट में बैरी हो जाते हैं, जिसे फॉसिल फ्यूल कहा जाता है. तो इसको बनने में कोई मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, राइट. इसीलिए आपका ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है. फॉसिल फ्यूल्स. Coal, oil and natural gas are non-renewable resources that supply energy. Most of the energy you use comes from these fossil fuels. Fossil fuels are fuels formed in Earth's crust over hundreds of millions of years. Cars, buses, trains and airplanes are powered by gasoline, diesel fuel and jet fuel, which are made from oil.
Coal is used in many power plants to produce electricity. Natural gas is used in manufacturing, for heating and cooking, and sometimes as a vehicle fuel. अच्छा, अब आपके कोल, ऑयल और नेचुरल गैस ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ना. और ज़्यादातर जो एनर्जी है जो हम यूज़ करते हैं वो आती है आपकी फॉसिल फ्यूल से. फॉसिल फ्यूल्स आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर बने अगेन ओवर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स. अब जैसे कार्स, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स हैं, इनमें आपका डीजल फ्यूल, जेट फ्यूल, ये सारा आपका यूज़ होता है जो कि आपका ऑयल से बनता है. कोल को यूज़ किया जाता है पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है आपका हीटिंग या कुकिंग के लिए, और समटाइम्स एज अ व्हीकल फ्यूल भी इसको यूज़ किया जाता है. Formation of fossil fuels. Fossil fuels are made from decayed plants and animals that have been preserved on Earth's crust by pressure, bacterial processes, and heat. This means that fossil fuels are organic, natural resources. About 300 million years ago, before the age of the dinosaurs, Earth was covered with green leafy plants. Earth's ocean and fresh water contained a large amount of algae and other small organisms. Over many hundreds of years, the decaying organisms were covered by sand and clay. The sand and clay layers formed into rock. अब फॉसिल फ्यूल्स आपके बनते हैं प्लांट्स और एनिमल्स जो डीके हुए, ओके, जो अर्थ क्रस्ट में आपके प्रिजर्व थे, देन बैक्टीरियल प्रोसेस की वजह से, प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से आपके वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए. यानी कि फॉसिल फ्यूल आपके ऑर्गेनिक नेचुरल रिसोर्स हैं. लगभग 300 मिलियन साल पहले, यानी कि डायनासोर के एज से पहले, अर्थ जो थी वो ग्रीन लीफी प्लांट से कवर्ड थी. अर्थ का ओशन और जो फ्रेश वाटर था उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एल्गी था और दूसरे ऑर्गेनिज्म थे. फिर 100 ऑफ ईयर्स के बाद जो डीकिंग ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने ये कवर्ड हो गए थे आपके सैंड एंड क्ले से. फिर सैंड एंड क्ले की जो लेयर्स हैं उनसे आपकी बनी रॉक. As more rock was formed, the weight pressed down on the trapped remains of organisms. Eventually, over millions of years, heat and pressure from layers of rocks pressing down the plant and animal remains turned them into the three main forms of fossil fuels: coal, oil, and natural gas. अच्छा, अब इसके बाद रॉक्स आपकी बनी और ज़्यादा रॉक्स बनी, तो जो वेट था रॉक्स का उसने जो उतने भी रिमेन्स थे ऑर्गेनिज्म का उसको प्रेस डाउन किया. तो फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स में हीट और प्रेशर की वजह से जो लेयर रॉक्स की लेयर्स के बीच में था, प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन जो है आपके प्रेस डाउन हुए. फिर वो 3 मेन फॉर्म्स ऑफ फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए जो थे कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस. Coal formation. Coal is the most abundant of all the fossil fuels. Coal formed from the incomplete decay of plants. The partially decayed plant material called peat becomes sandwiched between layers of sediments. Soft coal forms under moderate pressure and heat. As more heat and pressure are applied, the soft coal becomes hard coal. कोल आपका बना जब प्लांट्स का इनकम्प्लीट डीके हुआ, तो जो पार्शली डीकेड प्लांट मटेरियल थे उसे कहा गया पीट, क्योंकि एक सैंडविच बन गया जो सेडिमेंट्स के लेयर के बीच में. फिर सॉफ्ट कोल जो है वो आपका बना मॉडरेट प्रेशर और हीट के अंडर, और जब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर को अप्लाई किया गया तो जो सॉफ्ट कोल था वो आपका हार्ड कोल में बन गया. ऑयल फॉर्मेशन. माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड बैक्टीरिया आर द मेन सोर्स ऑफ ऑयल. Some of these organisms were producers using energy from the sun to make food for growth and reproduction. When they died, they fell to the seafloor. The microscopic organisms were buried under clay. Many layers of clay and mud increase the pressure and temperature, forming liquid oil. अब जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड बैक्टीरिया थे ये आपके मेन सोर्स हैं ऑयल के. कुछ जो ऑर्गेनिज्म थे आपके प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने सन की एनर्जी को यूज़ किया अपना खाना बनाने के लिए, अपनी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए, और जब वो मर गए तो दे फेल टू द सी फ्लोर. फिर जो थे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वो क्ले के अंडर बेरी हो गए. बहुत सारी लेयर्स क्ले की और मड की वजह से फिर क्या हुआ कि प्रेशर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ा, जिससे कि वो किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड ऑयल बन गया. नेचुरल गैस फॉर्मेशन. नेचुरल गैस फॉर्म्स अलोंग विद ऑयल बिकॉज इट इज लेस डेंस देन ऑयल. नेचुरल गैस इज यूजुअली फाउंड अबव ऑयल डिपॉजिट्स. एट लो टेम्परेचर्स more oil is produced relative to natural gas. At higher temperatures, however, more natural gas is created as opposed to oil. Natural gas is usually associated with oil in deposits that are 13 km below Earth's crust. Natural gas is found in areas beneath layers of solid rock. The rock prevents the gas from escaping to the surface. Let's come and read about these fossil fuels in detail. नेचुरल गैस आपकी ऑयल के साथ ही बनती है, बट ये ऊपर क्योंकि लेस डेंस होती है तो नेचुरल गैस जो है आपकी यूजुअली ऑयल डिपॉजिट्स के ऊपर पाई जाती है. लो टेम्परेचर में आपका मोर ऑयल प्रोड्यूस होता है रिलेटिव टू नेचुरल गैस, और हायर टेम्परेचर में हाउएवर मोर नेचुरल गैस आपकी क्रिएट होती है एज अपोज टू ऑयल. नेचुरल गैस जो है आपकी पाई जाती है जो सॉलिड रॉक्स की जो लेयर्स होती है उसके नीचे. रॉक क्या करती है कि गैस को एस्केप होने से प्रिवेंट करती है. कोल.
Coal forms where plant matter collects but is prevented from complete decay. The partially decayed plant material forms layers of spongy material called peat. कोल देखिए आपका बनता है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट से, बट कई बार क्या होता है कि इसका कंप्लीट डीके नहीं हो पाता है. ओके तो जो पार्शली डीकेड प्लांट मटेरियल होता है वो बनाता है लेयर ऑफ स्पॉन्जी मटेरियल जिसे कहा जाता है पीट. ओवर टाइम द पीट becomes buried and compressed. Increased pressure and temperature produce a solid sedimentary rock known as coal. इसके बाद आपका जो पीट है वो बैरी हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, फिर प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि एक सॉलिड आपका बनता है जो होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक यानी कि कोल. Coal developed under moderate amounts of heat and pressure is called soft coal. If more heat and pressure is applied to soft coal, it becomes hard coal. Soft coal retains some moisture and sulfur. When soft coal burns, it can release pollutants in the air. Hard coal is the cleanest burning coal and has the greatest amount of carbon, so it provides more energy than soft coal. Coal is removed from earth by strip mining and underground mining. कोल जो है देखिए अगर उसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ हीट और प्रेशर होगा तो सॉफ्ट कोल बनेगा, और अगर प्रेशर और हीट ज़्यादा होगा तो आपका जो सॉफ्ट कोल है वो हार्ड कोल बन जाएगा से. अब सॉफ्ट कोल में कुछ आपका मॉइस्चर और सल्फर होता है, इसीलिए जब सॉफ्ट कोल आपका बर्न होता है तो वो पोल्यूटेंट रिलीज करता है, जबकि हार्ड कोल जो है आपका क्लीनेस्ट बर्निंग कोल है और इसमें अमाउंट जो होता है कार्बन का वो भी सबसे ज़्यादा होता है. और कोल को आपको पता है कैसे निकाला जाता है, माइंस के थ्रू. Strip mines. In strip mining shown in above figure, large machinery is used to scrape the plant soil and rock layers off the ground above a vein of coal. Machines remove the surface of earth including the trees and other organic material and place it beside the mine. Once the layer of coal is exposed, it can be broken apart and loaded into containers for transportation. Strip mining is cost effective if the coal is close to the surface. स्ट्रिप माइनिंग जैसे ये देखिए आपको फिगर में नज़र आ रहा है, इसमें क्या किया जाता है कि लार्ज मशीनरीज को यूज़ किया जाता है कि ये फिर स्क्रैप करते हैं प्लांट सॉइल और जो रॉक लेयर्स होती हैं. ओके फिर मशीन्स जो हैं अर्थ के सरफेस को रिमूव करती है जो भी उसके रास्ते में आता है, चाहे ट्रीज़ है या कोई भी ऑर्गेनिक मटीरियल है. एंड एक बार जो लेयर होती है कोल की वो एक्सपोज हो जाए फिर इसको ब्रेक किया जाता है और फिर इसको कंटेनर्स में लोड कर किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन. Underground mines. If the coal is deeper, underground mines are used instead of strip mining. Underground mines are created by digging down into the earth at an angle to form tunnels. These tunnels go deeper and deeper until they reach the coal. Wooden beams and pillars are used to support the tunnel and make it safe for the miners. In some mines, tracks are laid to allow wagons to roll along the tunnels to move the coal toward the surface. अगर कोल आपका डीपर है तो अंडरग्राउंड माइंस को यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ स्ट्रिप माइनिंग. तो अंडरग्राउंड माइंस को कैसे क्रिएट किया जाता है, अर्थ को डिग किया जाता है एक एंगल में जिससे आपकी टनल्स बनती हैं. फिर ये टनल्स डीपर जाती हैं जब तक कि कोल नहीं मिल जाता. फिर वुडन बीम्स एंड पिलर्स का यूज़ किया जाता है इस टनल को सपोर्ट करने के लिए और ताकि ये माइनर्स के लिए सेफ रहे. Mining coal produces a fine black coal dust. If miners inhale coal dust, the lungs can be damaged. In the past, many miners suffered from a disease called black lung. Today, miners wear protective clothing and masks to avoid inhaling coal dust. अच्छा, जब माइनिंग होती है कोल की तो एक फाइन ब्लैक कोल डस्ट प्रोड्यूस होता है. अगर माइनर्स उसको इनहेल कर देते हैं तो उनके जो लंग्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं. तो पहले जो माइनर्स थे उनको काफ़ी लोग ऐसे थे जो डिसीज से सफ़र किए जिसका नाम था ब्लैक लंग. हालांकि आजकल जो माइनर्स हैं वो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनते हैं, मास्क लगाते हैं जिससे कि वो कोल डस्ट को इनहेल ना कर सकें. Petroleum. Oil, sometimes called petroleum, is used for heating and can be refined into gasoline, kerosene or diesel fuel. Oil formed mainly from ancient microscopic plants and bacteria that live in the ocean and saltwater seas. When these organisms died, they were quickly buried by layers of silt and sand and did not completely decay. ऑयल को पेट्रोलियम भी कहा जाता है. इसको आपको पता है कि इससे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जब इसकी रिफाइनिंग होती है, जैसे गैसोलीन, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल. तो ऑयल बनता है आपका जो आपके माइक्रोस्कोपिक प्लांट या बैक्टीरिया जो सी में रहते थे या सॉल्ट वाटर सीज में रहते थे. तो जब ये ऑर्गेनिज्म डाई हुए तो फिर क्विकली जो सिल्ट या सैंड की जो लेयर थी उसमें ये बैरी हो गए और कंप्लीटली डीके नहीं हुए, बट फॉर्म्ड मड्स रिच इन materials that form fossil fuels. The temperature and pressure increased as more sand and silt collected on top of the dead organism. और उसके बाद जैसे जैसे जो है ज़्यादा आपका सैंड और सिल्ट कलेक्ट हुआ डेड ऑर्गेनिज्म के टॉप पे तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगा.
Further increases in temperature and pressure caused liquid oil to form. The oil flowed into spaces and pools in the rocks. To get the oil out of the rock spaces, geologists drill wells deep into earth to the level of the reservoir of oil. Most of this oil is under pressure, so it flows to the surface where it is collected. Oil collected out of the ground is sometimes called crude oil. Crude oil must be refined for use in cars, large trucks, airplanes and trains. अच्छा, इसका टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो जिसकी वजह से जो लिक्विड ऑयल है वो आपका बना. फिर लिक्विड फ्लो हो गया स्पेसेस में या पूल्स में जो रॉक्स के बीच में थे. और इसको ऑयल को कैसे निकाला जाता है, जियोलॉजिस्ट जो है वेल्स को ड्रिल करते हैं. ठीक है, फिर इस जो रिजर्वियर होता है ऑयल का उसके लेवल तक पहुंचा जाता है. और ज़्यादा जो ऑयल होता है वो अंडर प्रेशर होता है. सो जब तो ये फ्लो करता है आपके सरफेस पे जहाँ पे इसको कलेक्ट किया जाता है. ऑयल जो आपका कलेक्ट होता है उसे हम कहते हैं क्रूड ऑयल. और जो क्रूड ऑयल होता है वो एज इट इज़ आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, उसको रिफाइन करना पड़ता है रिफाइनरीज में. उसके बाद ये इसका यूज़ किया जाता है कार्स में, ट्रक्स में, एयरप्लेन्स में या फिर ट्रेन्स में. Formation of petroleum. After being extracted from the earth crust, it is sent for fractional distillation to various refineries. After fractional distillation in distillation tower, different fractions of the petroleum are separated that are listed in the table given. इसके बाद जब इसको अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए भेजा जाता है वेरियस रिफाइनरीज में. और उसके बाद जब इसकी रिफाइनिंग होती है तो अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं. तो देखिए कौन कौन से फ्रैक्शंस हैं आपके पेट्रोलियम के. सबसे पहले आपका गैसियस पेट्रोलियम, इसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है और जैसे कुछ प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर में भी यूज़ किया जाता है. गैसोलीन जिसे पेट्रोल भी कहा जाता है, ये एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है और ड्राई क्लीनिंग में यूज़ किया जाता है. कैरोसिन ऑयल आपके लैंप या स्टोव्स में यूज़ किया जाता है. डीजल ये भी आपका फ्यूल है. ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल आपका जो है ये ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है. और एज पेंट ऑयल पैराफिन वैक्स, इससे कैंडल्स बनते हैं, वैक्स पेपर्स बनते हैं. हैवी फ्यूल ऑयल जिसे कहते हैं बिटुमिन, इसको यूज़ किया जाता है पेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए या रोड की सर्फेसिंग के लिए. Natural gas. Natural gas forms along with oil because it is less dense. It most often is found on top of oil pools. Natural gas is valuable because it burns cleanly and can be transported easily in underground pipelines. Natural gas is used in many ways such as for heating homes and cooking food. Natural gas जो है आपके ऑयल के साथ बनती है क्योंकि लेस डेंस होती है, इसीलिए ऑयल पूल्स के टॉप पे होती है. ये आपका वैल्यूबल रिसोर्स है क्योंकि एक तो एक आपका क्लीन फ्यूल है, इसको ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जाता है अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के थ्रू. फॉसिल फ्यूल कंजर्वेशन. Billions of people all over the world use fossil fuels every day. Because fossil fuels are non-renewable, Earth's supply of them is limited. In the future, they may become more expensive and difficult to obtain. Also, the use of fossil fuels can lead to environmental problems. Another problem is that fossil fuels must be burned to release the energy stored in them. The burning of fossil fuels produce waste gases that cause air pollution, including smoke and acid rain. For these reasons, many people suggest reducing the use of fossil fuels and finding other sources of energy. देखिए, fossil fuel को billions of लोग use करते हैं हर दिन. अब fossil fuels आपके non-renewable है, इनका जो supply है limited है, तो future में है ये तो expensive हो जाएंगे और ये मिलना भी मुश्किल हो जाएगा. इसके अलावा जो fossil fuel है इनकी वजह से environmental problems भी होती हैं क्योंकि जब देखिए जब fossil fuel जलते हैं तो बहुत सारी आपकी waste gases निकलती हैं जो एयर को pollute करती हैं. इसमें आपका स्मोग है या एसिड रेन है और इस रीज़न की वजह से लोग को सजेस्ट करते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है उसको रिड्यूस करना चाहिए और जो दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है उसे फाइंड करना चाहिए. नोट्स फॉर द चैप्टर. Fossil fuels, that is natural gas, petroleum and coal, are conventional source of energy. Air, wind and water are non-conventional sources of energy. Coal, petroleum and natural gas are fossil fuels. Fossil fuels are exhaustible resources. Petroleum gas, petrol, diesel, kerosene, paraffin wax, lubricating oil are obtained by refining petroleum. Coal and petroleum resources are limited. We should use them judiciously. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा and I hope आप जितनी भी fossil fuels हैं उनको judiciously, wisely use करेंगे और इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.